हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। आज मैं आपकी क्लास लेकर आया हूं क्लास नाइन्थ के लिए कंप्लीट सिलेबस है। ये नाइन्थ क्लास के लिए है। हमारा फाउंडेशन बैच चलता है एनडीए जेई नीट का, जो कि 8th क्लास से स्टार्ट होता है +2 तक के लिए। तो 4 साल का हमारा फाउंडेशन बैच है, आप ये ले सकते हैं। और आज जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो है क्लास 9th क्लास का सिलेबस। तो 9th क्लास का जो हमारा पहला चैप्टर है उसकी पहली क्लास है। तो आपका जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। बहुत ही प्यार से समझना है नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम में सबसे अच्छा क्या है, सबसे पहले प्यारे बच्चों नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नंबर होते क्या हैं? नंबर्स यानी कि काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड इज अ नंबर्स लुक लाइक एज 1 2 3 4 5 6 and so on is called a counting numbers, and these counting numbers is called a natural numbers. हम इन्हें नेचुरल नंबर कैसे बोलेंगे? 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर है, यानी कि आपकी क्लास है। क्लास कहाँ में रोल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। जो 1 से शुरू होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर हो गए, और जो डिजिट 0 से शुरू होते हैं वो होते हैं आपके, जैसे कि 0 इंक्लूड हो जाएगा नेचुरल नंबर्स में, तो वो नंबर क्या बन जाएंगे? होल नंबर। अगर आपके नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? होल नंबर। और अगर हम होल नंबर्स में या नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं क्या? इंटीजर्स। कमेंट कर सकते हो साथ साथ में, जैसे कि मैंने आपको ये दिखा रहा हूं -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो ये नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं आपके, पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और 0 भी आ रहा है। तो ये हमारे क्या नंबर्स कहलाएंगे? ये नंबर्स होंगे देन वी कॉल एज अ इंटीजर्स। These numbers called integers. Then we go next. The integers look like as in this, also in this form. We also know about the numbers, and these number is called a fraction, and the fraction is in the form of numerator and denominator, but in the numerator all these digits in the form of integers. Integers like negative numbers, positive numbers, and as well as 0 we count in this numerator, but in the denominator only the natural numbers is in the denominator. So we also know the numerator is integer and denominator is non-zero integer. Non-zero integers look like the denominator is not in the form of zero. So we call as a non-zero integer. So it makes a ratio of integers and non-zero integer, then we call as a rational number. So this number is rational number. In the definition of the rational number is, if p is any integer and q is also non-zero integer, then p over q is a rational number. What is rational number? Rational number, the numerator is in any integer and denominator is non-zero integer, so we call as a rational number. Also we call, the definition of the rational number is, if a p is an integer and q is any non-zero integer in the form of p over q, so we call a rational number. Then we go to the next. This is p over q, the q is missing there.
These are the examples 9 and over 4. This is equal to 2.25. The points after the point the digit is not stopped, then we call as a rational number, and this is terminating point because the no digit is repeated and again after the point. So this terminating point is called a rational number. But in the in this example 11 over 3, the digit comes 3 points after it's coming repeatedly, so we call as a non-terminating and recurring. What is recurring? Recurring is after the point the digit is coming at the same simultaneously, so we call recurring. If the digit is not repeat same, so we call non-recurring numbers. फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं बेटा कि P ओवर Q की फॉर्म में होता है हमारा रेशनल नंबर 9 ओवर 4। जैसे अगर आपके पास डिजिट दिया है तो 2.25 है, ये आपका यहां पर टर्मिनेट हो गया है, स्टॉप हो गया है, आगे कोई डिजिट नहीं आएगा। एग्जांपल के लिए मैं जैसे कि 25 को अगर 5 से डिवाइड करूं तो यहां पर 25 क्या आ गया इसका, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है, ये सीधा का सीधा ही कट गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेशन कहेंगे। टर्मिनेशन यानी कि आपका रेशनल नंबर में जाएगा। अगर हम इसी को ही अगर 7 को 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6 आया 1, लगा पॉइंट आया 0, 2 5 जा 10, और आप देखेंगे कि 3.5 के आगे ये डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 3.5 के आगे अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग में जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा चले जाएगा, अगर हम 11 को 3 से करते हैं तो 3 3 जा 9, तो 2 आ गया, लगा पॉइंट आया 0, 3 6 जा 18 आया 2, फिर लगाया 0, 3 6 जा 18। तो देखेंगे आप हर बार 2 2 बैलेंस में बच रहा है और ये डिजिट आगे क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है और सेम डिजिट रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग बोलेंगे। और अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि खत्म तो नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी में ही हमारी डेफिनेशन एक और बन जाती है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग इज आल्सो कॉल्ड एज अ रेशनल नंबर। अब हम रेशनल नंबर में जब ये डिजिट जैसे ये रिपीट हो रहा है 666, अगर इसको हमने एक ही बार लिखना हो तो 3.6 बार भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर आपको मेंशन करके हम बता रहे हैं। तो 3.6 बार करके भी मेंशन करके कर सकते हो। ऐसा ही आपका ये डिजिट है, आप कमेंट कर सकते हो कि यहां पर आपका बार कहां पे कैसे लगेगा, कमेंट करना है आपने। तो अब आंसर मैं बता देता हूं। अब ये 9.14 क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, 914 जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपने आइडेंटिफाई करना है और मुझे बताना है कमेंट करके कि इसमें हमारे कौन कौन से रेशनल नंबर है और कौन कौन से इरेशनल नंबर में जाएंगे। जल्दी से अपना कमेंट करिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट आ गया है, आपका टाइम हो गया। तो 0.48, देखिए 8 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। बार का क्या मतलब होता है बेटा, बार का मतलब होता है वो डिजिट आपका क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। डिजिट रिपीट होना है इनकी 8888। तो जब 88 रिपीट होता है तो दिस इज रिक्यूरिंग। ओके, और साथ में ये अगर ये रिपीट भी हो रहा है अगेन एंड अगेन आगे चल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना, आगे आगे चलता जाना, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग होता है वो हमारे डिजिट्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। कौन से डिजिट्स होते हैं, रैशनल नंबर्स ही होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट
ये भी आपका 914 के ऊपर जो है बार लगा हुआ है। बार का मतलब वो डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेक्यूरिंग ही होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेक्यूरिंग होगा तो वो डिजिट आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। फिर से ध्यान से सुनते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर ना बार लगा है ना डिजिट रिपीट हो रहा है, ना बार लगा है ना डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये आपका जो है टर्मिनेट हो गया है। जो टर्मिनेट हो जाता है वो भी आपका रैशनल नंबर ही होता है। जो टर्मिनेट हो जाए वो भी रैशनल नंबर ही होता है। बच्चे सोचते हैं कि वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो भी रैशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर होगा, बट नॉन रिक्यूरिंग जो है तब रैशनल नंबर नहीं होगा। बहुत ही ध्यान से सुनना है, प्यार से पढ़ना है। देखिए यहां पर डिजिट को देखिए, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट नहीं हो रहा है और आगे चल रहा है तो ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग हो गया। तो ये आपका नॉट रैशनल नंबर, यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये इररेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इररेशनल नंबर। देखिए यहां पर भी ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिक्यूरिंग है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर बट नॉट अ रैशनल नंबर। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, सेम रहेगा, ये भी आपका नॉट रैशनल नंबर। नेक्स्ट वाला भी आपका देख सकते हैं रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। मगर लास्ट वाले को देखिए आप, ये रिपीट कर रहा है और अगेन एंड अगेन चल रहा है, तो ये क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। तो दिस इज exercise to identify the relation rational number. Also which type of numbers they are they, आप इसको सोच सकते हैं इसके बारे में भी। और ये सभी जो इतने हमने रिपीटेड अभी लास्ट स्लाइड में किए थे, तो ये वो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये सभी सभी हमारे क्या आ जाएंगे, इरेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। व्हाट इज इरेशनल नंबर? Irrational number is those numbers which are non-terminating and non-recurring. So these numbers are irrational. आल्सो हम ये बोल सकते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि फोर होता है, फोर का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2। अगर मैं 225 की बात करूं तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 15, क्योंकि 15 15 जा 225। तो 2 का नहीं होता, 3 का नहीं होता, इनकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या वैल्यूज हैं, जैसे कि √2 की है तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये है वैल्यू 5 की, ये भी है, तो ये इन किसी का भी प्रॉपरली डिजिट नहीं आता है जो कि आपके नेचुरल नंबर की तरह है। तो इसलिए हम इन सबको डिजिट्स को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो अभी तक हमने क्या क्या स्टडी कर लिया उसको देख लेते हैं एक बार। हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स 0 to 1 2 3 4 we add 0 in the natural number, so call as a whole number. Then नेक्स्ट इज इंटीजर, जब हमने होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर लिया तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं, और इन सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर ओवर नॉन जीरो इंटीजर्स। दीज are also called as a terminating and non-terminating numbers and also recurring, यानी कि सेम रिपीट होना। तो ये सभी इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि वो सेम टू सेम रिपीट ही नहीं करेंगे और टर्मिनेट भी होंगे, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। और दोनों के रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो आई होप कि आपको ये रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आ गया होगा। फर्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। 8 इज डिवाइडेड बाय 2।
अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए, 8 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 4 जा 8, तो अब माइनस किया तो ये टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेट हो गया जी। अब जो अंदर वाला ये डिजिट है 8 है, इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। नोट करते चलना है प्यारे बच्चों, डिविडेंड किसे कहते हैं, अंदर वाले डिजिट को, जो कि नंबर भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, नंबर। ठीक है, ऐसे ही जो डिवाइड कर रहा होता है उसको हम डिवाइजर कहते हैं, और जिससे डिवाइड किया होता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, और जो शेष फल बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देन आफ्टर देन आपने एक नंबर बनाना हो, जैसे कि हमें ये 8 बनाना है, तो यहां पर देखें डिविडेंड को हमने 8 बनाना है, तो हमने 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 0 कर दें, रिमाइंडर 0 है, तो 2 4 8, दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल बन जाती हैं। तो आप ये लर्न रख सकते हैं कि हमें नंबर को बनाना होता है और डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर को उसमें प्लस करके। यहां पर भी आप देख सकते हैं इसी प्रकार से, ये स्लाइड्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है, तो आप यूं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं 15 का। अब 2 को 15 से किया है तो लेफ्ट आपका 1 आया है, 1 क्या आया है, रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर आपका 1 आया है तो लिखने का प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। 15 कौन है आपका, नंबर, नंबर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, यानी कि आपका जो डिवाइजर है उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 7 जा 14। अब 1 ये रिमाइंडर अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगा, 15 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। जब ये 15 बन जाता है तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर भी लिख सकते हैं। तो a और b जो हैं वो हमारे क्या होंगे, कोई भी इंटीजर होंगे। आप भी देख सकते हैं क्वेश्चन में ही, ये जो क्वेश्चन है ये a है ये b है, तो इन्हीं डिजिट्स को हमने लिखा है, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इस तरीके से लिखने को याद रख लेना। रिमाइंडर आपका 0 है, लेस देन टू 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन टू 0 रहेगा रिमाइंडर हर बार, और या इक्वल टू 0 होगा, तो इसे हम बोलेंगे इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं इस प्रकार से लिखने को बेटा। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। इफ अ रैशनल नंबर is rational number is a rational is 0 is a rational number, क्या 0 एक रैशनल नंबर होता है? Can you write it in the form where p and q are in p over q and q is not equal to 0? तो हम देखिए 0 अगर मैं लिख दूं अकेला 0 तो रैशनल नंबर है कि नहीं है, होगा बेटा। कैसे होगा, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 होता है। तो अब मैंने आपको बताया है कि जो ऊपर जो डिजिट होते हैं वो हमारे इंटीजर होंगे, क्या होंगे, इंटीजर होंगे, नीचे कौन होंगे, नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। तो नीचे 0 नहीं है ऊपर है, तो इसलिए यस ये आपका रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम इसको किसी भी वे से देखिए 0 over 1 मैंने जैसा आपको एग्जांपल दिया, 0 over -2 भी लिख सकते हैं हम, 0 over 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए प्यारे बेटा। ये सभी एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे क्या है, रैशनल नंबर के हैं। न्यूमरेटर आपका याद रख लेना बेटा, न्यूमरेटर आपका 0 हो सकता है पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारे जो 0 है वो आपका क्या आएगा, रैशनल नंबर। 0 क्या आएगा, रैशनल नंबर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडली क्वेश्चन में जाने से पहले आपको ये नोट याद रख लेना है, कभी भी बिटवीन
नंबर्स आपको निकालने हो, कितने भी निकालने हो, अगर आपको 6 नंबर्स बोले हैं तो आपने 7/7 यानी कि एक इंक्रीज कर लेना है, n+1/n+1 कर लेते हैं बोथ साइड में। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा आएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है इसका इसी टाइप का, 6 रैशनल नंबर निकालने 3 और 4 के बीच में। 6 बोला है तो आपने 7/7 लेना होता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, 6 to find 6 rational numbers between any two rational numbers we multiply both numbers 6+1 यानी कि 7/7, यानी कि इसको और इसको दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/7 से। बहुत ही बढ़िया। देखिए 3 था, 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 7/7 से। 7/7 से करेंगे तो 7×3=21 और 7×1=7 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 को भी कर लेते हैं, तो 4 को ओवर 1 आ जाएगा, जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो हमने 7 से ही इसको भी कर लिया है, तो 7/7, 7×4=28, 7×1=7 आ गया। अब हमारा ये बन गया, यानी कि दोनों का बेस जो है वो क्या बन गया, इक्वल बन गया। और 21 से लेकर 28 के बीच के जो डिजिट होंगे वो सभी के सभी आपके रैशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब आप ये सभी डिजिट्स देखिए, 21 से लेकर 28 के बीच के रैशनल नंबर्स ये हैं, और ये सभी कितने हैं, 6 डिजिट आए होंगे। कितने डिजिट आए होंगे, 6 डिजिट ही आए होंगे। तो इस तरीके से आप जो हैं रैशनल नंबर्स जो हैं 2 डिजिट्स के बीच के निकाल सकते हैं। ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये रैशनल नंबर्स आपके आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया है, आपने इसी तरीके से परफेक्ट करना है। ठीक है, तो ये थे आपके रैशनल नंबर्स में ही है। जैसा मैंने आपको बताया, इस तरीके से ये डिजिट्स बने हैं। स्क्रीन थोड़ी सी बंद हो गई थी तो इसलिए मैंने आगे चला दी। तो ये सभी के सभी जो रैशनल नंबर हैं ये इसके बीच के हैं, तो ये आपके 6 रैशनल नंबर्स काउंट होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का 1.1 का ही थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा कि 5 रैशनल नंबर, 5 बोला है तो 6/6 लेना है। क्या लेना है, 6/6। ये ध्यान रख लो बेटा। ठीक है, अब इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो, दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 से। देखिए ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको बताया है रैशनल नंबर का हमारा जो है बिटवीन द नंबर निकालने हो तो एक प्लस कर लेते हैं और आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखिए 3/5 को 6/6 से किया तो 18/30 आ गया, और 4/5 को भी अगर आपने 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 6×4=24 और 5×6=30। अब 18 से लेकर 24 के बीच के जो डिजिट है वो 5 रैशनल नंबर्स में बन जाएंगे। ये देखिए 18 से लेकर 24 के बीच के ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। बस अब आपको इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो दिस इज द रिजल्ट फॉर द रैशनल नंबर्स। तो ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। ये बिटवीन के आपके नंबर निकल गए हैं, बिटवीन के नंबर निकले हैं। तो ये आपका रिजल्ट रहेगा इस एक्सरसाइज का। इसी प्रकार से एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन आपका ये है। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप अपने इस एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ये आपका ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। 1.1 एक्सरसाइज चल रही है, एनसीईआरटी बुक की पहली एक्सरसाइज है, जिसका पहला यस या नो में आपको कमेंट करना है। एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो सभी होल नंबर होते हैं, यस या नो। तो आंसर इज ट्रू, नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो होल नंबर ही हैं। ठीक है, तो इसलिए एवरी नेचुरल नंबर्स लाई इन द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, होल नंबर में 0 का ही फर्क है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर में ही होते हैं। ठीक है, तो होते हैं यस ट्रू।
नेक्स्ट सेकंड इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हर एक जो इंटीजर है क्या वो होल नंबर होता है? इंटीजर में तो नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव तो इसमें होल नंबर में होते ही नहीं, इसलिए फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो है वो होल नंबर्स में नहीं होते। तो आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? स्कूल से भी यूनिक लग रही होगी। आपने बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में जो है शेयर करना है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर हैं वो क्या होल नंबर होते हैं? फॉल्स। वो तो फ्रैक्शन में होता है। किसमें होता है? फ्रैक्शन में होता है। तो हमारा होल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 में। तो कैसे हो सकता है? ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते मेरे भैया। कैसे हो सकते हैं? ये फ्रैक्शन है, ये सीक्वेंस में है, होल नंबर्स हैं। तो इसलिए ये आपका क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो ये आपके होल नंबर नहीं होंगे। आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगाना है और विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड करनी। वहां पर आप स्कूल क्लासेस में जाकर आप जो हैं ये फ्री क्लासेस का मजा ले सकते हैं और ये नोट्स भी वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 1.2 आपकी इसके बाद आ रही है। 1.2 जो है वो हम देख लेते हैं, एक 1.2 भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये भी आपका स्टेटमेंट का ही है। कमेंट आ रहा था बच्चों को कि नहीं सर रुको रुको, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और आप जा रहे हैं। इरेशनल नंबर पर भी देख लेंगे। इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू फॉल्स में ही बताना है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर वो कौन से होते हैं? जो पॉइंट्स के आगे भी डिजिट चलते रहते हैं, रिपीटिशन में चलते रहते हैं। तो दिस इज ट्रू, यानी कि जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो फिर क्यों नहीं होंगे? ये होंगे। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम। यानी कि अगर एक नंबर लाइन है यूं करके, तो इसके बीच में जो डिजिट आते हैं वो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 ऐसे बीच में आ सकती है वैल्यू। यस, ओबियस आ सकती है। मगर वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, मगर वो m जो है वो नेचुरल नंबर ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। वो नेगेटिव में भी हो सकता है और अपॉन में भी हो सकता है। क्या है? नेगेटिव और अपॉन में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये एग्जांपल था, तो ये नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और अपॉन यानी कि फ्रैक्शन में। तो इसलिए ये फॉल्स में चलेगा, नेचुरल नंबर में नहीं होंगे। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। हर एक नंबर इरेशनल होता है? नहीं, हर एक नंबर नहीं होता है। कुछ नंबर जो हैं आल्सो एज अ रियल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ये इरेशनल जरूरी नहीं है कि सभी इरेशनल ही हो। तो रैशनल नंबर्स आर आल्सो इन रियल नंबर्स। तो ये भी आपका क्वेश्चन रहता है इस प्रकार से। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आ गया है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट्स, नो, कोई भी स्क्वायर रूट्स का जो आएगा डिजिट वो पॉजिटिव आएगा। इरेशनल में कैसे आएगा? अंडर रूट अगर आपका 4 आ रहा है तो वो 2 आ रहा है, 2 एक क्या नेचुरल नंबर जा रहा है, अब वो पॉजिटिव में आएगा यार, तो वो हर एक स्क्वायर का जो है वो पॉजिटिव आएगा, पर वो पॉइंट्स में नहीं जाएगा। अंडर रूट 2 होता तो होता। तो इन्होंने जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का दिया है, और पॉजिटिव इंटीजर्स का दिया है, तो इसलिए नो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। जैसे कि आपके ये डिजिट्स हैं, इन सब का आंसर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। इसी प्रकार से जैसे अंडर रूट 4 है, 9 है, देख सकते हैं आप, 16 का 4 होगा, 25 का 5 होगा। ये सभी आपके क्या एग्जांपल्स आ गए इरेशनल नंबर्स के लिए। तो ये थी आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी की क्लास का पहला चैप्टर की क्लास। आपने कैसी लगी इसको दोबारा वीडियोस को देखिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप जो हैं विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और साथ में स्कूल क्लासेस में जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो क्लासेस अटेंड करिए। और भी नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपका भविष्य संवारने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।